तो जीएसटी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान, भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की कोशिश। प्रधानमंत्री ने कहा आम आदमी की जिंदगी में इससे सुधार होगा। आम आदमी से जुड़े टैक्स हमने कम कर दिए। निर्मला सीतारमण ने कहा 22 सितंबर से तमाम घोषणाएं लागू हो जाएंगी। अब जीएसटी के सिर्फ 2 स्लैब होंगे, 12% और 28% वाला स्लैब खत्म कर दिया है। Till such a time the loan is repaid, as I said, the 28% plus the compensation cess will run. Once I clear the loan, they all come to 40%, and that's what is the GST. EV remains at where it was. Yes, it remains at where it was, 5. 214. मेरा सवाल, चूंकि अभी काफ़ी खबर चल रही थी कि जो 2500 जो अभी ब्रांडेड 1000 रुपये से ऊपर का जो शर्ट एंड फुटवेयर्स है, मैं राजीव हूँ सर, दैनिक जागरण से, तो उस पर उसको 2500 उसकी सीमा की जा रही थी। जो 2500 से ऊपर है उनको उन पे ज़्यादा टैक्स लगेगा, तो ऐसा कुछ हुआ या अब सब पे जो भी फुटवेयर और गारमेंट्स होंगे 1000 रुपये से ऊपर के भी, उन पे भी सिर्फ 5% ही लगेगा? इस पे कुछ फैसला हुआ? नंबर 1। नंबर 2 सर, कि स्मॉल कार, मिड साइज कार, तो क्या इसमें 1200 सीसी से ऊपर वाले सभी कार पे 40% लगेगा? जहाँ तक फुटवेयर का सवाल है, आज के दिन 2 रेट्स थे। 1000 रुपये से कम वालों के ऊपर 12% और 1000 रुपये से ऊपर वाले के ऊपर 18% लगता था। सो जो चेंज किए गए हैं, जैसे आपको ज्ञात है कि मैडम ने पहले बताया कि 12% का रेट अभी नहीं है, तो 2 रेट जो अभी हैं वो 5 और 18 के हैं। 5% पे जो 2500 से कम वाली वस्तुएं वाले फुटवेयर हैं और 18% पे जो 2500 से ऊपर वाली वस्तुएं। आपका दूसरा सवाल किस इशू से था? सीसी। हाँ, मैडम ने आपको बताया कि छोटी कारें जो हैं वो 18 पे होंगी और बाकी सारी कारें जो हैं वो 40 पे होंगी। डेफिनेशन तो आई थॉट वो तो डिपार्टमेंट MHRT मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट रेगुलेटर का है। पेट्रोल की 1200 सीसी और डीजल की 1500 सीसी होती है, और उसके साथ शायद लेंथ का भी एक लिमिटेशन होता है। तो जो उनका रेगुलेशंस के हिसाब से छोटी कारें हैं वो हमारी 18 पे रहेंगी। हम लोग अलग से कोई नया डेफिनेशन उसका नहीं बना रहे हैं। 45. I had a related question on hotels and on air travel. Again, there were 2 classifications there. So if and I suppose, I think all these would be in the detailed press release that you'd be issuing, but if you could just help us. 269. Thank you, ma'am. This is Girish from Mint. Ma'am, some states had suggested that there could be a new duty imposed on, items on the 28%, which will move to 40%. Has that been considered? And secondly, ma'am, there is no cess applicable on high-end cars, which has moved to 40%, right, ma'am? If an item has moved to 40%, there's nothing more to be added. Okay, ma'am. Because the maximum rate which you can levy on a car, on any item is 40%. And in the 40% category, we've put all the tobacco and tobacco-related sin goods and super luxury items only. Number 3. Hello, ma'am. This is Priyoshmita from Informist Media. Ma'am, first I wanted a clarification. I was still looking at discontinuing compensation cess around November, as in, is that the timeline we are following to repay the loans? And secondly, states had pitched for some kind of a mechanism to compensate them after the rate changes are effective because of the revenue loss. So has there been any discussion, and is the center looking at something on those lines? Thank you. I think I've mentioned it clearly, till such a time that the loans don't get repaid. We will continue with the 28% items and the compensation cess collection over it, particularly only those items which I read out, tobacco-related products,
and they will continue till such a time I repay the loan, which is the council has authorized the finance minister to stop that collection the moment the loan is repaid. I cannot speculate on the time now whether it is October or November, but it will be well within, I think, this calendar year. Number 2. I think, first of all, I would like to request the media to look at the GST Council as where the center and the states are seated together. I mentioned this in the council also. The center may be a 1/3 partner, the states put together can be 2/3 partner. But we are all in it together. So anything that which is gained or lost is for everybody. It's not as though states have lost. The center is not. प्रधानमंत्री वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण फिलहाल पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रही हैं। जीएसटी के सिर्फ 2 स्लैब होंगे, जीएसटी के बारे में डिटेल से बता रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त पर लाल किले से कहा था, स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से कहा था कि इस साल दिवाली पर लोगों को बड़ा तोहफा मिलने वाला है। तो ये वो तोहफा लोगों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दे दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा था हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर आ रहे हैं। सामान्य लोगों के लिए टैक्स कम कर देंगे, रोज़मर्रा की चीज़ें सस्ती हो जाएंगी और लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। और ये वो तोहफा जो प्रधानमंत्री ने कहा था नवरात्रि के दिन से 22 सितंबर से लागू हो जाएंगी। ये घोषणा निर्मला सीतारमण ने भी नवरात्रि का जिक्र किया। एक बड़ा उद्देश्य है, जो छोटे व्यवसायी हैं, एमएसएमईज हैं, उनको इससे फ़ायदा मिलेगा। 175 आइटम्स पर जीएसटी दरों में कटौती हो सकती है, जिनमें फूड इंग्रेडिएंट्स, बादाम, स्नैक्स, रेडी टू ईट आइटम, जैम, घी, मक्खन, अचार, चटनी, इस तरह के कई सारे, एसी, रेफ्रिजरेटर, इन चीज़ों पर 175 आइटम्स पर जीएसटी दरों में कटौती हो सकते। 5 और 18% का स्लैब, 4 स्लैब थे, लेकिन अब सिर्फ 2 स्लैब रह जाएंगे। ये अविनाश गहलोत जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अविनाश जी, स्वागत है सर आपका जी राजस्थान पर। सर, ये बड़ा तोहफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर जो घोषणा की थी, जिस तोहफे की बात की थी, वो तोहफा दे दिया है आज। किस तरह देख रहे हैं आप? देखिए, निश्चित ही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और करोड़ों लोगों के आस्था के जो नायक हैं नरेंद्र मोदी जी, जो कहते हैं वो करते हैं, यही भारतीय जनता पार्टी सरकार की खासियत रही है। और नरेंद्र मोदी जी ने इसी साल जब लाल किले की प्राचीर से ऐलान किया था कि देश के लोगों को, जिनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी है, प्रधानमंत्री बने हैं, उनको दीपावली का गिफ्ट मिलेगा। तो आज बड़ा ऐतिहासिक फैसला जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में हुआ है और जो स्लैब है वो 12 और 28% का खत्म कर दिया गया है। और निश्चित ये बड़ा है, इसमें से बहुत सारी जो आम जीवन को, मध्यम वर्ग परिवार को जो काम आने वाली चीजें हैं वो सब सस्ती हो जाएगी।